I want to once again bring into this conversation Air Marshal Sanjeev Kapoor, former Director General of Inspections and Flight Safety. Air Marshal Kapoor, when you saw those images of that, was it a stall, when that aircraft lifted off, when 625 feet, seemed to slide down, and then we saw that huge ball of fire? Is that, you've been DG Flight Safety and Inspections. Would you want to speculate what happened? Gaurav, if I recall, the elevation of Ahmedabad airfield is around 180 feet above mean sea level, 190 or so. We rounded off to 200 feet. So if the aircraft is set at 600 feet, it must just barely be about 400 feet above ground. So that is because altimeter will indicate 600, but actually you are just Correct. 400 feet above ground. It takes from the sea level. Now, what happens is, I was covering before you took the other guess, is that this is the most critical phase. You can see in this visual that the undercarriage are down, yes. The flaps are down, the attitude is very high. So it means it is the attitude is directly related to speed. So the higher the speed, lower is the attitude, and vice versa. So when the aircraft comes in for landing, the nose is up. So yes. It is at the lowest speed because you don't want the undercarriages to get that shock. So you bring down the aircraft to near stall speed for landing. Correct. And similar is for the takeoff. You don't want the aircraft to be on the runway at high speeds because it damages the undercarriage and the frame structure. So you get airborne at the lowest possible speed. So the attitude is much higher. So what happens? The aircraft full power is on. And generally we take the power till about 1,000-1,500 feet, to keep, help assist the aircraft to clean up. Take the undercarriage, take the flaps, slats, and other drag-producing verticals which assist in takeoff in. And thereafter, the aircraft starts to accelerate, and thereafter, we start gaining height. So this is a general process for any aircraft after takeoff. Now, what happens in this situation, which you just covered, and I tweeted and I forwarded to you also one of my tweets, is that this aircraft capacity is about 126 tons. Yes. So in my appreciation, this aircraft has 126 tons of fuel. So that's how you see this black smoke coming. So full fuel because of it's a long endurance flight. Yes, longest. Also, you carry fuel because of weather and route diversions and other. So invariably for long hauls, the aircraft is nearly full. The passenger load is nearly full. And afternoon time. So the ambient temperatures plus the the other associated tarmac temperatures must be crossing 50 degrees. If the temperatures are around 40-45 outside, the tarmac temperatures are about 5 to 7 degrees more than the ambient temperature because the surfaces get heated up. So the runways get heated up. So all these things. So these are all contributory factors. I'm in no way saying that these factors in any way are responsible for this accident. No, absolutely no. These are environmental factors. Okay. Hypothetically, if it was a cold season, hypothetically, if the fuel was less, hypothetically, if the load was less, hypothetically, if the area around was clear. So the probability of recovery is much higher and better. But so that is one. Perhaps he didn't have enough altitude to be able to recover the aircraft. Yes. So I'll just come to that moment in just a moment, sir. Stay with me for a moment as my colleague Atul is also standing by with this report from Ground Zero. अहमदाबाद में प्लेन क्रैश होने की घटना सामने आई है। उसके बाद की आप तस्वीरें देख पा रहे हैं जिस जगह पे प्लेन क्रैश हुआ है उसके आसपास की जो दीवार है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए लगातार तोड़ी जा रही हैं, क्योंकि जो भी रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तत्काल प्रभाव से जिन लोगों को रेस्क्यू करना जरूरी है उन्हें अस्पताल में पहुंचाया जा सके, उसके लिए जो दीवार हैं वो तोड़ी जा रही हैं। और तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी हैं वो भी कहीं ना कहीं घायल हो रहे हों, इस प्रकार की तस्वीर सामने आ रही है। बिल्कुल उसके राइट साइड में भी मैं कोशिश करूंगा आपको तस्वीर दिखाई जाए कि जो एक कार यहाँ पे पार्किंग में पड़ी हुई थी वो भी पूरी जल चुकी है। किस प्रकार का ये भयावह हादसा है वो आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं। जो एम्बुलेंस है उसकी सायरन की आवाज़ सुन सकते हैं। उसके अलावा भी अगर बात करें तो लगातार जिनको रेस्क्यू किया गया है उनको यहाँ से बाहर निकाल के अहमदाबाद सिविल अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया जा रहा है।
अहमदाबाद में 1:40 को एयर इंडिया की फ्लाइट जो है उसने 1:38 को उड़ान भरी थी, जो कि क्रैश हुई है। पीछे की तरफ की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो तेजी से चलाया जा रहा है। जेसीबी मशीन के माध्यम से जो भी दीवार यहाँ पे तोड़ने की ज़रूरत पड़ रही है उसे तोड़ा जा रहा है, क्योंकि सबसे पहली प्राथमिकता यही है कि प्लेन में जो 242 लोग सवार थे, अगर उसमें से कोई भी जख्मी है तो उसे तुरंत ही निकाल कर उनका रेस्क्यू किया जाए। फिलहाल आप फायर ब्रिगेड की जो टुकड़ी है उसे भी देख पा रहे हैं। पानी छांट कर जो भी आग लगी है उसे बुझाने की जो कोशिश है वो यहाँ पे की जा रही है। मेरे आसपास की तरफ की तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। एयर इंडिया का ये प्लेन था और लंदन के लगभग 240 मुसाफिर इसमें शामिल थे। और आप देख पा रहे हैं जो भी स्पेयर पार्ट्स हैं, प्लेन जब क्रैश हुआ तो प्लेन के जो भी अलग अलग हिस्से हैं वो यहाँ पर टूट के गिरे हुए हैं। और लगातार यहाँ पे एम्बुलेंस की जो सायरन है वो सुनाई दे रही है। कोशिश यही की जा रही है कि जितनी जल्द लोगों का रेस्क्यू हो पाए और लोगों को अस्पताल पहुँचाया जा सके। लोगों की जो सुरक्षा है उसे प्राथमिकता दी जा रही है। यहाँ पे बीएसएफ समेत एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और एयरफोर्स की जो टुकड़ियां हैं उसे यहाँ पे भेज दिया गया है। कमांडो भी यहाँ पे नजर आ रहे हैं और खास करके प्राथमिकता यही है कि तत्काल प्रभाव से रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो तेजी से चलाया जा सके। और किस प्रकार का ये बेहद ही डरावना हादसा है, अगर उसके ऊपर भी नजर करें तो ये जो बिल्डिंग है जो कि मेघाणी नगर इलाके में आई है और एयरपोर्ट के बिल्कुल पीछे की तरफ का हिस्सा है, आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं। अभी भी जो आग है वो आग दिखाई पड़ रही है बिल्डिंग के ऊपर की तरफ। और यहीं पे वो प्लेन जो है वो जाके सबसे पहले वो टकराया और टकराने के बाद जो पेड़ है वो आप समझ सकते हैं तस्वीरों में देख के, प्लेन के जो पेड़ है उसके ऊपर का जो हिस्सा है वो टूटते हुए जो प्लेन है वो आगे जाके गिरा हुआ है। जहां फिलहाल आप तस्वीरों में जो भीड़ देख पा रहे हैं ये वही जगह है जहां पे प्लेन जो है वो जाकर क्रैश हो गया। गनीमत यही है कि सीधे तौर पर प्लेन बिल्डिंग में नहीं टकराया, लेकिन प्लेन का जो बाहरी तरफ का जो बाहरी हिस्सा होता है, जो उसके टायर के तरफ के जो उसके विंग्स होते हैं वो यहाँ पे जो बिल्डिंग है उस पे जाके टकराई। और बिल्डिंग के ऊपर की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, चौथा मंजिला इमारत का जो कि डैमेज हो चुका है। यानी कि स्पष्ट तौर पे हम ये समझ सकते हैं कि प्लेन किस तरह से यहाँ पे आके टकराया। और तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं एनएसजी जो कमांडोज हैं वो कमांडो भी यहाँ पे तत्काल प्रभाव से भेज दिए गए हैं। अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर और अहमदाबाद सिविल अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, जो नर्सिंग कर्मचारी हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे पहली प्राथमिकता यही है कि जो लोग यहाँ पे घायल हुए हैं प्लेन क्रैश में उनको तत्काल यहाँ से रेस्क्यू किया जाए और 200 मीटर की दूरी पर अहमदाबाद सिविल अस्पताल जो कि एशिया की सबसे बड़ी अस्पताल है वहां ले जाकर उनको सुरक्षित उनका इलाज शुरू कर दिया जाए। आप इसको ट्रैक करिए, मैं ताजा जानकारी के लिए फिर आपके पास लौटूंगा।